Hello everyone, welcome once again in our unit number 4, chemical bonding and molecular structure. Today's our continuing topic about the valence bond theory, and let us start with a new concept is the electronic configurations and molecular behavior. We know that in last lecture there is an energy level diagram for molecular orbitals. Likewise, in the case of O2 through Ne2 is like that. First sigma 1s, then sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, then pi 2px, pi 2py, then after sigma 2pz, and then once again pi star 2px, pi star 2py, and sigma star 2pz. But for O2 to Ne2, the graph is little bit like that: sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, and then sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, then pi star 2px, pi star 2py, and sigma star 2pz. Fine. So once again, now the molecular orbitals are filled with the total number of electrons, not just the valence electron, mind well, because there is a large difference between valence bond theory and molecular orbital theory. Valence bond theory में क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही हमें काउंट करना है. यहाँ पे जो भी है, पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है मुझे काउंट करने पड़ेंगे, काउंटिंग बाय टेकिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ बोथ द एटम्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. The electrons are filled from the lowest energy orbitals, right? मुझे lowest Aufbau rules को follow करना पड़ेगा in order of increasing energy and orbitals of equal energy. जो equal energy वाली है, तो मैं Hund's की rules की वजह से, हमें मालूम है Hund's का rule क्या बता रहा है कि half filled with parallel spin before they begin to pair up. वो Hund's rule, short and sweet Hund's rule हम दिखा रहे हैं. So the distribution of electrons in various molecular orbital is known as electronic configuration of the molecule. So the electronic configurations provides important information about the stability as well as the nature of the bond in the molecule. Now, the stability of molecules. The stability of molecules can be determined by the relative number of electrons in the bonding molecular orbital and non-bonding molecular orbital. The molecule is stable if number of bonding electrons are greater than the number of anti-bonding electrons, because we know that the greater number of bonding molecular orbitals are occupied, the bond is stronger and molecule is more stable. But the molecule is unstable if number of bonding electrons are lesser than the number of anti-bonding electrons, because greater the number of anti-bonding orbitals is occupied, because we know that it's a negative interference, right, of the anti-bonding nature. So this influence the stronger, influence is stronger and the molecule is unstable. So this is all about the stability of the molecules. Now the important topic is a parameter is called as a bond order. What is the meaning of bond order? Or how we calculate the bond order in such a type of diatomic molecules like N2, O2, F2, right? So bond order is defined as the number of pairs of electrons shared between atoms. So molecular orbital theory also predicts the bond order and hence the qualitative bond strength between the covalently bonded atoms. तो bond order का बिल्कुल जो short and sweet formula ये है, bond order is equal to 1/2 number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons, where number of bonding and number of anti-bonding are the number of electrons in the bonding and anti-bonding molecular orbitals. Thus, in terms of molecular orbitals, bond order can be defined as 1/2 of the difference between the number of electrons present in the bonding and the anti-bonding orbital. So the stability of the molecules can be related to bond order in the following term. कौन सी टर्म्स में हमें दिखाना चाहिए? The positive bond order कैसे होगा? Number of bonding is greater than number of anti-bonding, तो molecule stable है. Number of anti-bonding is greater than NB, और या दोनों equal हो जाएगा, तो अगर इक्वल हो जाने की वजह से तो बॉन्ड ऑर्डर ही जीरो हो जाएगा, तो मोलेक्यूल ही नहीं होगा, या एन ए ज्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा. So the value of bond order is indicative of the nature of the bond. So integral values like 1, 2 or 3, जैसे 1 दिखा रहा है तो इसका मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लाइक इन द केस ऑफ H21 F21 होता है, राइट.
डबल बॉन्ड है यानी ओ डबल बॉन्ड ओ है तो देर इज अ डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स लाइक इन द एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड. So the bond order between two atoms in a molecule can also be taken as an approximate measure of its bond length. तो जो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की, जैसे हमें मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर. तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो रहा है. So let us consider the following example to understand the relations between the number of electrons in bonding and anti-bonding molecular orbitals. जैसे मैंने H2 में बताया हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो कि 2 - 0/2, जैसे हम दिखाएंगे अभी इसको बाद, ठीक है. तो 1 बॉन्ड ऑर्डर जैसे मैंने He2 है तो यहाँ पे 0 है यानी He2 पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या होता है, देयर इज नो बॉन्ड. सो He2 मोलिक्यूल्स इज अनस्टेबल टू एग्जिस्ट. लेकिन He2 प्लस होता है ना, वो हो सकता है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5, राइट. लेकिन यहां पे ये नोटिस करना पड़ेगा, द बॉन्ड ऑर्डर डज नॉट हैव टू बी अ वोल नंबर. इन दिस केस इट इंडिकेट्स अ बॉन्ड कैरेक्टर इक्विवेलेंट टू अबाउट द हाफ बॉन्ड. अभी कई बच्चे को ऐसा होता है, सर जी 1 तो 1 होता है. देखिए ये बॉन्ड है ना, ये कुछ नहीं है, हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये दो न्यूक्लियस के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका जो अट्रैक्टिंग पावर है ना, वो हम बॉन्ड ऑर्डर से दिखा रहे हैं. यानी हाफ बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हाफ है और 1 है तो डेफिनेटली 1 का तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. तो ये जो एक पैरामीटर हमने देखा, लेकिन दो पैरामीटर यहाँ पे हमने देखे, बॉन्ड ऑर्डर और साथ साथ में हमने बॉन्ड लेंथ भी का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हमने समझ में आ गया है. अभी जो नेक्स्ट वाला है वो मैग्नेटिक नेचर की बात यहाँ पे समझाई गई है. The molecular orbital theory has been a very useful and successful in predicting the magnetic behavior of the molecule. तो यहाँ पे जो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थियरी की एक लिमिटेशंस थी ना, जो कमी थी ना, वो यहाँ पे एमओ ने पूरी कर दी है. In filling up the molecular orbitals, if a molecule contains no unpaired electrons, अब पूरी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आप देख लीजिए, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा तो वो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा. बट इफ इट कंटेन्स 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब है वो पैरामैग्नेटिक हो रहा है, यानी वो पैरामैग्नेटिक की तरफ चला जा रहा है. सिंपल है, पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाईमैग्नेटिक है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक की ओर चला जा रहा है. देखिए अभी मैं आपको एक और एक के बाद में आपको यहाँ पे पूरा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का जो इसका डायग्राम है, हम डायग्राम भी देखेंगे और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देखना चाहेंगे. तो देखिए मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ H2 का जो मॉलिक्यूलर डायग्राम है वो पहले हम दिखाना चाहते हैं. तो हमें मालूम है कि यहाँ पे एक जो सिग्मा यानी जो 1s ऑर्बिटल होती है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल होती है, ठीक है. दोनों का जैसे इंटरफियरेंस होने की वजह से वो दो ऑर्बिटल्स यानी दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स वो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा. जैसे एक होती है उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सिग्मा 1s है और ये है सिग्मा स्टार 1s, यानी ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग और मोलिकुलर ऑर्बिटल है. हमें मालूम है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो यहाँ पे होती है उससे यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पे एनर्जी कम है, लेकिन रिगार्डिंग टू आउटबो पहले यहाँ पे फील होगा, बाद में यहाँ पे फील हो जाएगा. तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इन द केस ऑफ H2 में क्या होगा. देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, और बीच में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के जो H2 बनते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी, सिग्मा 1s2 ही होगी, क्योंकि बाद में यहाँ तो एम्प्टी ही है. तो सिग्मा 1s2 का मतलब फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है विथ 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर 1s atomic orbitals, they combine to form, okay. So sigma 1s bonding and sigma star 1s anti-bonding molecular orbitals are operated. So the two electrons feel a single bonding sigma 1s orbital. So the energies of the separate 1s orbitals are indicated as the left and right. So those of the molecular orbitals are shown in the center. मैंने center में दिखाया वो molecular orbitals का
यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस दिखाए। अभी देखिए ये तो मुझे मालूम हो गया, अभी मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का तो मतलब हमें मालूम है कि 1/2 है, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का जो है, तो मुझे नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स क्या है 2 है, एंटी बॉन्डिंग्स क्या है 0 है, बाई 2 है, यानी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि H2 में आपको H और H के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड है आपको यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं? H और H के बीच में आपको यहाँ पे एक बॉन्ड है, वो यहाँ पे मिल रहा है। फिर दूसरा मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये दोनों अनपेड है या पेड है। दोनों पेड है, तो यानी इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। तो हमें मालूम है वो डाईमैग्नेटिक ही होगा, तो उसका नेचर जो हमें मालूम है वो डाईमैग्नेटिक हो जाए। अभी अब मैं आपको क्यों यहाँ पे समझाना इतना डिटेल में चाहता हूं, क्योंकि आपकी बुक में H2 की ही बात यहाँ पे समझाई हुई है। यानी ये जो बॉन्ड है, मुझे उसका जो फॉर्मेशन है ये 438 किलो जूल पर मोल एनर्जी के साथ चल रहा है। समझ में आ रहा है? यानी मुझे इसको ब्रेक करने के लिए 438 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी। यानी ये दोनों का जब मिक्सचर हुआ यहाँ पे आया तो एनर्जी लॉस कितना आया है, यानी कितनी एनर्जी उसने बाहर एक्सोथर्मिक में डाल दी है, 438 किलो जूल उसने रिलीज कर दी थी। अभी आपको तोड़ना है, ये इसको ब्रेक करना है, सो इट्स रिक्वायर्ड 438। दूसरा हमें मालूम है उसकी बॉन्ड लेंथ है वो 74 पाइकोमीटर के आसपास है, वो हमें मालूम है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का कोई डेटा या कुछ ऐसा स्टडी करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको क्या समझाना, मैं अपनी तरफ से दूसरा मैं आपको यहाँ पे ये भी समझाना चाहता हूं। देखिए ये जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है ना, उसका जो चार्म है, उसका जो यहाँ पे यूनिकनेस है, आपको मालूम है वैलेंस बॉन्ड थियरी ना वो H2+ की कोई बात करना है। देखिए मैं अभी आपको एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो भी बच्चे JEE और नीट की वजह से चल रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी आएगा। अभी मुझे H2+1 का यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो H2+1 का मुझे कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे आपको इसका दिखा सकता हूँ ना। देखिए ये दोनों क्या है, 1s है और 1s है, समझ में आ गया। उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन 2 प्रोबेबिलिटी जनरेट करेगा। एक कौन सी जनरेट करेगा, सिग्मा 1s, दूसरी कौन सी जनरेट करेगा, सिग्मा स्टार 1s। अभी यहाँ पे जो मेरे पास है वो हाइड्रोजन है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, H+ है, यानी दोनों का मिक्सर H2+ में हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर भी उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन था उसका एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ये इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर पहले क्या था, इन्फ्लुएंस अपने ही न्यूक्लियस का था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पे अभी दोनों न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस यहाँ पे लग जाएगा। हमें इसके यानी H2+ पॉसिबल है या कि नहीं, मुझे ये ढूंढना है। डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s1। अच्छा, इसका कोई बॉन्डिंग ऑर्डर हो सकता है तो हम देख लेते हैं। 1/2 NB में कितने हैं, 1 है, और इसमें कितने हैं, 0 है, यानी इसमें हाफ बॉन्ड ऑर्डर है, यानी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है। यानी ये हो सकता है लेकिन इससे अनस्टेबल है ये, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड 1 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कोई बच्चे कहीं सर भी H2+ ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है, नहीं, ये गलत बात है। H2+ का हो सकता है अनस्टेबल है, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हो ही नहीं सकता है, तो ये हम कुछ इस तरह से नहीं बता सकते। फिर आप दूसरा ये भी देखिए कि उसका जो मैग्नेटिक नेचर आपको दिखाई देगा, तो मैग्नेटिक नेचर यहाँ आपको इसका क्या दिखाई देगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से वो कहां पे चला जाएगा, पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया एक के बाद एक मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। आपने H2+ देख लिया, मैं अपनी तरह से ये दिखा रहा हूँ। आपकी कोई भी बुक में या मैं आपकी जो JEE की बुक में वहां पे वो इस तरह से का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया हुआ है, क्योंकि ये अप्लाइड अभी कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ। अभी देखिए मुझे H2-1 की बात करनी है। क्या करनी है, H2-1 भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। तो H2-1 हम किस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप समझिए। H2-1 का मुझे ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तो मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं। देखिए
यहाँ पे देखिए, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो 2 प्रोबेबिलिटी के साथ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे समझ में देखिए यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, H माइनस है। समझ में आ रहा है आपको? फिर से ये H है और H माइनस है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मुझे रखने पड़ेंगे, एक। तो यहाँ पे मुझे कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो अपना ये है और एक अलग इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा। तो यानी H और H माइनस का मुझे कॉम्बिनेशंस दिखाना हो तो किस तरह से, देखिए इसका और इसका पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा सिग्मा 1s में, और अभी जो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है वो यहाँ पे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में। यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो रही है, तो क्या सिग्मा 1s हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने सिग्मा 1s2 यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1 हो जाएगा ना। बॉन्ड ऑर्डर में क्या है कि मेरे पास यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1 नंबर ऑफ एंड, और इसके बाद 2, यानी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0.5 है, राइट। अभी ये पेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पे अनपेड आपको दिखाई दे रहा है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेड दिखाई देगा तो वो पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा। समझ में आ गया? H2-1 का भी मैंने आपको कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। अभी आपको क्वेश्चंस है ना वो समझ में आना चाहिए कि मैं आपको क्या क्वेश्चंस यहाँ पे डाल रहा हूं। मेरे पास H2 है, H2+1 है और H2-1 है। तो इसमें से किसकी, देखिए यहाँ दोनों के बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं, 0.5 और 0.5 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। हमें मालूम है इसकी स्टेबिलिटी तो बेस्ट है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे देखना है कि दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, H2+1 की या H2-1 की। लेकिन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है। तो लेकिन हमें मालूम है कि नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 1। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं। तो अब मुझे आप सोच के बताइए, मैं आपको यहाँ पे जवाब देना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सोच के बताइए कि H2+1 ज्यादा स्टेबल होगा या H2-1 ज्यादा स्टेबल होगा। मैं आपके पास छोड़ रहा हूं, आपको यहाँ पे इसका आंसर देना पड़ेगा कि क्या किस तरह से हो सकता है। समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए, अभी मैं आपको एक और मॉलिक्यूल्स के बारे में अभी आपको बात करना चाहता हूं, और वो मेरे पास है He2। मेरे पास हीलियम का मॉलिक्यूल्स है। हमें मालूम है He2 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो कि He2 में देखिए, मैं यहाँ पे उसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो दिखाना चाहता हूँ। ये हीलियम है और ये हीलियम है, इसकी ये 1s ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है? ये भी इसकी 1s ऑर्बिटल है। दोनों यहाँ पे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है उसके। ये जो दोनों एक साथ मिलेंगे तो मुझे मालूम है देयर आर 2 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। एक मेरे पास क्या होती है, सिग्मा 1s, और रिमेनिंग सिग्मा स्टार 1s की हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा आपको? देखिए इसका पहला और इसका पहला इलेक्ट्रॉन तो ये सिग्मा 1s में ही चला जाएगा, फिर उसका दूसरा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव इंटरफेरेंस था, यहाँ पे नेगेटिव इंटरफेरेंस हो गया। ये इन फेज में चला गया था इसलिए सिग्मा 1s बनाया, ये आउट ऑफ फेज में जाने की वजह से सिग्मा स्टार 1s में चला गया। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में किस तरह से लिख सकता हूं, देखिए सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो देखिए 2-2/2 यानी 0 है। यानी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, तो कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में थे उतने ही एंटी बॉन्डिंग में आने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो नहीं पा रहा है। सो He2 इज नॉट पॉसिबल। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? He2 है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कई बार हम पहले क्या बोलते हैं, सर जी हीलियम है ना वो इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस है ना बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये जो आपको समझ में आएगा है, तो ये यहां से मैं आपको समझा सकता हूं। सो टोटल एनर्जी ऑफ He2 इज लार्जर देन दैट ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या होगी, He2 की जो एनर्जी है वो लार्ज हो जाएगी ये दोनों इंडिविजुअल्स की वजह। अगर इसकी और इसकी एनर्जी से भी ज्यादा इसकी एनर्जी हो गई है तो एनर्जी बढ़ने की वजह से वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है।
समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं आपको समझा सकता हूं कि हीलियम इज अ नोबल गैस एंड डज नॉट फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड से वो कुछ यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर? अभी मेरा एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये जो He2+ है, ये पॉसिबल हो सकता है? तो कई बच्चे ना कहते हैं नहीं सर जी नहीं होता, क्योंकि हीलियम का कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं होता ही नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात इस तरह से समझाना चाहता हूँ, He2 तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? मैं He2+ हो सकता है या नहीं? तो सेम वे हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे, समझ में आ रहा है? फिर से ये 1s वाला है, ये भी 1s वाला है। इसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक यहाँ पे एक He का मोलिक्यूल है और एक He+ का होगा, यानी बीच में क्या आ जाएगा? He2+ हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो 2 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो उसका पहला और इसका पहला इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव इंटरफियरेंस होने की वजह से वो यहाँ पे चला जाएगा, ये सिग्मा 1s में चला गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चला जाएगा, ये सिग्मा स्टार 1s में चला गया। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2+ इस तरह से कुछ हो रहा है, सिग्मा स्टार 1s1। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आपको दिख रहा है? 2 - 1/2 यानी 0.5 में चला जाए। तो दूसरा, ये पैरामैग्नेटिक भी है, पैरामैग्नेटिक नेचर भी दिखा रहा है। अभी कई बच्चे सर जी ऐसा कुछ हो, हमें तो प्रैक्टिकली ये कुछ पॉसिबल है? आप समझिए, होगा। आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा हुआ था, उस टाइम आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, आपको समझाया होगा। देखिए, मुझे मालूम है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है, नो डाउट। मुझे मालूम है कि ये हाईली अनस्टेबल है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता है, मिशन इम्पॉसिबल है, ऐसा हम कुछ नहीं बता सकते हैं। आपको मालूम होगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू अ हीलियम फील्ड ट्यूब, जहां पे आपने जो हम थॉमसन का जो प्रैक्टिकल्स देख रहे थे E/N का, राइट? सो विच शोज दैट He+2 प्रेजेंट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नो डाउट, हाउएवर द आयन इज नॉट वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ये अलग बात है, लेकिन ये हो सकता है। ये आंसर है ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल ही दे पा रहा है, वैलेंस बॉन्ड थियरी इसका आंसर दे नहीं पा रहा है। सो इट्स द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी कंपेयर टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी और जो वैलेंस बॉन्ड थियरी की वजह से हम जो समझना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक और समझाना चाहता हूँ। देखिए, He2+ देखा ना आपने, He2+ देखा। अभी देखिए, यहाँ पे He2+2 हो सकता है। देखिए, आप समझिए, बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड होके देखिए, हो सकता है सर जी। देखिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए ये कौन सा, मैं पहले यहाँ पे इतना फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, समझ में आ गया? अच्छा, ये कौन सा था? ये 1s वाला है, ये भी 1s वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है। बीच में मिलेंगे, क्या होगा? He2+। यहाँ पे क्या है? He+। यहाँ पे क्या है? He+। दोनों मिलके, अच्छा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा। ये तो सिग्मा स्टार 1s का सिंबल था। तो मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है? सिग्मा 1s2 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 -0/2 यानी 1 है। तो इससे तो अच्छा स्टेबल ये है। आपको समझ में आ रहा है? ये जो He2+ है और He2+2 है, तो ये बनने के बावजूद ये स्टेबल हो पा रहा है। देखिए, ये डाईमैग्नेटिक है। क्या है? डाईमैग्नेटिक है, क्योंकि पैड इलेक्ट्रॉन है, पैड इलेक्ट्रॉन है। सो He2+ इज पॉसिबल बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर इज 1। क्लियर? हाँ जी, देखिए, मैं अभी आपको और भी बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे, अच्छा देखिए, मैं एक अपना पुराना एक क्वेश्चन था, H2-2 इज पॉसिबल और नॉट। फिर से मैं हीलियम में से कहां पे ले गया? आपको H2- में मैं आपको ले गया हूं। देखिए, अभी आपके पास ये देखना पड़ेगा कि H2-, तो सर जी हम तो पहले तो हम ये ड्रॉ कर देते हैं। अभी देखिए,
इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसमें H माइनस है, ये भी H माइनस है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 2 यहाँ पे चले जाएंगे, बाद के 2 यहाँ पे चले जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। और मुझे मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं वो 2-2/2 यानी 0 हो जाएगा, यानी इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी H2-2 इज नॉट पॉसिबल। H2-2 का नेचर बिल्कुल किस तरह से हो गया है, हीलियम जैसा ही हो गया है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हीलियम जैसी है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। राइट, समझ में आ गया। H2-2 का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर 0 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि H2+1 H2-1 इस तरह से भी मैंने आपको समझाया हुआ था। तो आज मैं यहीं पे रखता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरे नंबर से लिथियम से हम आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ी अपनी भी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस है, जैसे जी नीट एडवांस में, तो वो भी मैं यहाँ पे अपनी तरह से, जैसे थियोरेटिकल पोर्शन समझ में आ रहा है, तो उसी वजह से हम समझते हम इसके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप भी एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए।